Good morning, students. Today we have to see about the next lecture of our tenses. That means of present tense, past tense, and future tense. All of you know that in the last lecture I had told to you about there are three main types of tenses and how we have to convert that tenses. And in the next lecture I have to tell now about the table, how we have to make the table. With the help of that table easily you can calculate or easily you can change the one form of tense to another form of tense. So how it can be, let's see. In the last period we had know that kinds of tenses are there are mainly three main types of tenses, which are that present tense, past tense, future tense. Okay. Now, if I have to write this present tense into simple form, that simple present tense I gave one example to you in the last period. That one is I go. Okay. So simply you have to write I go there. In the continuous form, what we have to write? Simply ing to the verb means going. And after I, we are using am here. So I am going. That one is the present continuous tense. In the perfect tense, I already told you that I have gone. We have to write here I have gone. Okay, gone means this one is the V3 form of the go. Go, V3 form of the go is go, went, gone. Okay, so that's why we have to write here gone. After that, we have to write in perfect continuous tense I have been going. Okay, so from this table you are easily understood that how we have to write the simple present tense sentence, in continuous present tense, in perfect present tense, and perfect present perfect continuous tense. Okay, so if we have to change this sentence into the past tense, then what we have to write? Simply we have to write the past form of this go. That one is the went. तो simple past tense में क्या आएगा बेटा? I went. Continuous past continuous tense में क्या आएगा? I am की जगह पे सिर्फ हमको was लिख डालना है. I was going. In the same way, if we have to write this into the past perfect tense, past में have का क्या होता है वो मैंने बताया था आपको, had होता है. वेरी गुड. तो had लिख लेंगे I had gone. Then in the same way we have to write here also, instead of have we have to write here had. So I had been going. This one is the tenses of the past tense. Okay, this one is the sentences in the past tenses. Okay. In the same way future tense का क्या आएगा? सिर्फ आपको क्या करना है, गो के और आई के बीच में शाल लगा देना है, तो फ्यूचर टेंस आ गया आई शाल गो. यहां पे भी आई शाल लगा के आई शाल सब सिर्फ आपको बी लगा देना है और गोइंग लगा देना है, आई शाल बी गोइंग. इन द सेम वे हियर इट इज ऑल्सो आई शाल हैव gone, and here it is also I shall have been going. ये आ जाएगा आपका. सिर्फ मैंने यहां पे क्या किया, गो और आई के बीच में शाल लगा दिया सभी जगह पे, तो आई शाल गो, आई शाल बी गोइंग लगाएगा, सिर्फ यहाँ पे शाल बी यूज होगा. इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, I shall have gone, and future perfect continuous tense में होगा I shall have been going. So in this way we are easily understood from this table how we have to change the sentences from one tense to another tense. ऐसा ही another examples हम ले सकते हैं. अगर मैंने subject change किया, I go की जगह पे we go लिखा, तो ये आ गया एक sentence हमारा we go, हम जा रहे हैं. V यहां पे लिखा तो आपको पता है V is in the plural form. So what we have to write, instead of am we have to write here are. We are going, ये आ जाएगा यहाँ पे. Instead of have we have to use again have here and we as a subject. So we have gone, ये आ जाएगा यहाँ पे. और वैसे ही यहाँ पे भी we have been going. Okay,
तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हमने वी गो का किया वैसे पास्ट टेंस में आएगा यहाँ पे वी वेंट, वी वेयर आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, तो आर की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वी वेयर गोइंग, वी हैड गॉन, वी हैड बीन गोइंग। एंड इन द सेम वे फ्यूचर टेंस में आएगा वी शैल गो, वी शैल बी गोइंग, वी शैल हैव गॉन, वी शैल हैव बीन गोइंग। Simply you have to write, instead of I we have to write here we, then easily you are transfer this sentence into the another tenses. Okay, so let's see some examples from this table. तो एक आप टेबल ऐसा अगर आपने लर्न कर लिया, समझ लिया, तो इजीली आप एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़े से एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्शन कैसे करना है इन द टेंसेस, one tense to another tense. Just for example, if I am giving you one example, I go to the market. I go to the market. तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा यहाँ से कि I go, यहाँ पे go यूज हुआ है तो सिंपल टेंस है, और यहाँ पे प्रेजेंट में यूज किया है। go is the present form of this verb, so that's why we know that this sentence is in the simple प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमको मिल गया। इसका मुझे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर करना है तो कंटिन्यूअस में मैंने बोला था कि वर्ब को आईएनजी लगेगा, तो गो को आईएनजी लगा के गोइंग हो जाएगा, और आई वैसा का वैसा, आई के बाद हम लगाएंगे एम, आई एम गोइंग टू द मार्केट। इन दिस वे वी हैव टू राइट दिस सेंटेंस, मीन्स दिस टेंस इज चेंज टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने चेंज कर लिया। तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया है वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग फॉर वॉच मूवीज, वी आर गोइंग फॉर वॉच मूवीज। अगर हम मूवी देखने को जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर वॉच मूवीज, मूवीज देखने को हम जा रहे हैं, तो ये यहां से हमको पता चल गया है कि आर गोइंग मतलब ये आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, और आर लगाया है ये प्लूरल फॉर्म को, ये हमारा वी है, वी प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया, और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, और आर ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप ले सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। सो यू शुड हैव टू रीड दैट टेबल। After reading that table, you are easily understood how we have to convert the sentences into another sentences. For example, just another one example, if I am giving to you, we play in the garden. We play in the garden. हम गार्डन में खेलते हैं। ओके, तो अभी ये कौन सा हो गया, वी प्ले, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गया प्ले का, तो ये सिंपल में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, ये आप बता सकते हैं। दिस वन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर मुझे करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी हैव, परफेक्ट मतलब खेलना हमारा हो गया है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हमने बताया था, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो वी हैव प्लेड इन द गार्डन। So in this way you are easily understood about that how we have to convert this simple present tense into the present perfect tense, present perfect tense। So इस प्रकार से हमने ये कन्वर्शन कर लिया है। तो इसकी मदद से आप इजीली समझ सकते हैं टेबल की मदद से कि वी प्ले था, प्ले मतलब हमारा फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसका कन्वर्शन हमको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था टेबल के फॉर्म में
कि हमको क्या यूज करना है, हैव यूज करना है, तो वी के बाद हैव यूज किया, और साथ ही साथ में क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, प्ले का आता है थर्ड फॉर्म प्लेड, सो वी हैव प्लेड। बाकी जो भी सेंटेंस है वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं और अपने मन से चेंज भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ, दैट वन exercise for you, and best of luck for your exam. If there is any comments, then share with me, and have a nice day.